Assalamu alaikum, class. In this lecture, we'll be studying what is series and parallel circuit, as we have already covered what is series and parallel circuit, and we are now revising these concepts. At the end of this lecture, I'll be sharing a short quiz or activity with you all, and then you have to solve it. So please get ready and learn it carefully. And if you got any answer, any question in the middle of this, you can just raise hand and I'll give you some 5 to 6 minutes after delivering this lecture so you can ask questions related to this. So first of all, I'll explain you what is series and parallel circuit. You guys are well familiar with what are circuits. You know what are the basic components of circuits. Circuits include, a bulb, wire, switch, battery. These are the main components of circuit. Main components means what is making circuit basically, and what we need to make a circuit, what we need to make a simple circuit. Okay. So now let's see what is the difference between series and parallel circuit. Okay. So when we talk about series circuit, it means two or more bulbs are arranged side by side. Side by side means if there is a lane and if, for example, Lubna is standing right to Hasna, and just like you making a line for your assembly and you're making line when you getting off from school. So this is the same case in the series circuit. One bulb is here, other is here, so they are placed side by side to each other. So it means it is in the same line. Okay, so when two or more bulbs are arranged side by side in a circuit, they are connected in series. Okay, so we can connect more than two bulbs, even three bulbs, four bulbs, five bulbs, how many as we can. But it will make the circuit more complex. But to your level, you can just learn to draw two to three bulbs. That's right. And this is what is a series circuit basically. Now we'll be going through the characteristics of series and parallel circuits. So first characteristics of series circuit is that electricity flow through only one path in this kind of circuit. One path means there is one way to travel. Path. Okay, so path is the way, रास्ता जिसे circuit ने travel करना है. So electricity flow through one path in this kind of circuit. So let me clear one more point here, that whenever I talk about electricity, you can just remember that it flows from the positive to negative terminal. And when we talk about the flow of electrons, so you know that electrons are present at the negative terminals and it is repelled, and negative terminal and the electrons are repelled to each other, so it will flow from here to here. Okay, not here to here, but it will flow from here. This arrow will be like this. Okay, so here I'm not talking about the flow of electrons, but I'm talking about electricity flow. So conventionally, when we talk about conventional current flow, okay, so conventionally current flows from the positive terminal of the battery to the negative terminal. So there is some big confusion for you all. So you can remember that जब जब भी आपसे ये बात की जाए कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ से कहाँ करेंगे सर्किट में, तो यू शुड रिमेंबर दैट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल opposite to this circuit. But now we're talking about circuits, we're talking about current और electricity. जब भी current या electricity की बात की जाएगी, तब आपने जो है इसका conventionally हमारे पास यही समझा जाता है, that is old concept of the current. ठीक है कि current जो है वो positive से negative terminal की तरफ flow करेगा. ठीक है. ओके. सो अब आपको यहाँ पे जब भी आपको सर्किट ड्रॉ करने की बात आएगी, तब आपने इसको हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेके जाना है. लेकिन पहले जो हमने स्टार्ट में पढ़ा वो इलेक्ट्रॉन्स की बात थी, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो की बात थी. ठीक है, वहां पर आपने जब इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात आएगी तो आपने नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाना है. ठीक है, आपको क्वेश्चन मैं बाद में लूंगी. अभी मैं थोड़ा सा आपको पढ़ा दूं, उसके बाद एक एक मैंने आपके लिए एमसीक्यू भी डिजाइन किया है जिससे आपको समझ लग जाएगी. ठीक है, लेट मी शो दिस एमसीक्यू राइट हेयर. मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट जो है वो बता दिया है. अब मुझे हैंड रेस करके बताइएगा सबको समझ आ गई है
कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाएगी या सर्किट की बात की जाएगी तो करंट आपने कहाँ से कहाँ फ्लो कराना है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। और जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात की जाएगी तब आपने नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेके जाना है, ठीक है। ये सबको पता लग गया? अपना हैंड रेस कीजिएगा सब बच्चे, सो दैट आई नो यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट राइट। ओके, आर राइट, nice. Okay, let me show a short quiz just like to MCQs, so help you remember this how to answer if you have encounter any MCQ in your exam, to what you should select the answer. ये एक छोटा सा मैंने आपके लिए क्विज बनाया है, ठीक है। इन्हें अपने हैंड रेस कीजिएगा और फिर मैं उस बच्चे से पूछूंगी जिससे मैं पूछना चाहूंगी। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम। अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट की बात आई है, ठीक है। फ्लो ऑफ, साथ में क्या लिखा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जब बात आएगी तो क्या कहेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल और नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। अपने हैंड रेस कीजिएगा और फिर मैं आपको अलाउ करती हूँ और आप में से कोई एक बच्चा जवाब देगा। अपने हैंड रेस कीजिएगा और मुझे ताकि पता लगे कि इन बच्चों को ये बात समझ आ गई है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम दी पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। सारिया ने हैंड रेस किया है, इसके अलावा लबीका, माहिदा, सतवत, फरीदा। ओके सारिया, आप बता दें। सारिया, हम्म ये फर्स्ट वाले का क्या आंसर होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम? नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। वेरी गुड। ओके, नाउ for next question, in an electric circuit the direction of conventional current is from the positive to negative terminal, negative to positive terminal। ये किसको पता लगा, अपना हैंड रेस करें। माहिदा, सतवत, आप बता दें। डायरेक्शन ऑफ, पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव वेरी गुड, टर्मिनल। ठीक है। ये मैंने आंसर भी यहाँ पे लिख दिया है, वन का बी आंसर था नेगेटिव टू पॉजिटिव, एंड टू का ए ऑप्शन था, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। माहिदा, आपका कोई और क्वेश्चन भी था, आपका हैंड रेस था, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, देन विल बी मूविंग फॉरवर्ड। यस टीचर, जब हमें अगर पेपर में उन्होंने कोई सर्किट ड्रा करने को कहा, पैरेलल या सीरीज, जी, हमने बैटरी के साथ हमने करंट जहाँ फ्लो करेगा, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव, उसकी डायरेक्शन भी एरोज लगाकर बतानी है। जी डायरेक्शन भी बतानी है, और आपने जैसे ही सीरीज पैरेलल सर्किट में आपने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बल्कि डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट उधर दिखाना है, ठीक है। तो फिर आपने इसका हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही जाना है जिस तरह से आपकी बुक में ड्रॉ है, ओके। ठीक है। ओके, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस करिएगा, अगर नहीं है तो हैंड नीचे कर लें, लोअर डाउन योर हैंड एंड देन बी स्टडिंग द करेक्टरिस्टिक्स। ओके, महक, आपको कोई क्वेश्चन है, बताएं। टीचर, कन्वेंशनल करंट का क्या मतलब होता है? जो जनरली करंट समझा जाता है ना, जो सबसे पहले करंट की समझा जाता था, ओल्ड कॉन्सेप्ट जो करंट का था उसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। जो जनरल चीजें होती हैं, ठीक है, जनरली आपके लेवल पे यही समझा जाएगा जब करंट की बात होगी, कन्वेंशनल करंट की, ठीक है। तो उसमें ये समझा जाएगा। मानिया, आपका कोई क्वेश्चन? यस टीचर, मुझे सेकंड वाले एमसीक्यूज की समझ नहीं आई। अच्छा, मैं दोबारा बता देती हूँ। ये सेकंड एमसीक्यू था, डायरेक्शनल ऑफ कन्वेंशनल करंट। मैंने कहा था जहां पे करंट की या इलेक्ट्रिसिटी की बात आएगी ना, तब आपने इसको क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात आएगी तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं ना, ठीक है, उन पे चार्ज, तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। अगर करंट, कन्वेंशनल करंट की या इलेक्ट्रिसिटी की बात आएगी तो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाना है। समझ आ गई है मानिया? यस। ठीक है। अरीशा, आप बता दो आपका क्या क्वेश्चन है।
फिर मैं अभी अभी आई हूँ, तो मुझे नहीं समझ आई अभी। अच्छा अरीशा, नेक्स्ट टाइम आपने जो है ना टाइम से ज्वाइन करना है, क्योंकि इस तरह से आगे जो है अगर मैं यही चीज़ें बार बार रिपीट करूंगी तो फिर आगे मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी, ठीक है। और अरीशा, आपने जो है ये मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, ठीक है। रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी एंड फिर आप इसको दोबारा देख सकती हैं, ठीक है। मैंने अभी क्या बताया था, ये बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी की जब बात करूँ ना या सर्किट में सीरीज पैरेलल में, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जिस तरह यहाँ पे एरोज लगे हैं उसी तरह लगेंगे। लेकिन व्हेन आई टॉक अबाउट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। आई होप कि आप सबके क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं, किसी का हैंड रेस भी है भी नहीं है, देन वी शुड बी मूविंग फॉरवर्ड विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज सर्किट. So the next point is that electricity flow through only one path in this kind of circuit. One path का मतलब है there is one way of travel, ठीक है, एक ही रास्ता है for the करंट और फॉर द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो, ठीक है। अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी की बात हुई थी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की नहीं, तो हम पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। एक ही पाथ है, देर इज नो अदर वे, ठीक है, कोई और रास्ता नहीं है, एक ही रास्ते से ये जाएंगे, यहीं से, ठीक है। अगर दरमियान में भी कोई बल्ब लगे होते तो इट मीन्स कि उसका ये भी पाथ हो सकता था, ये भी पाथ हो सकता था, तो एक ही कंप्लीट इसमें सर्किट है। नेक्स्ट हमारे पास है करंट। करंट का जो सिंबल है उसे हम कैपिटल आई से लिखते हैं, ठीक है। करंट फ्रॉम द सेल पासेस थ्रू वन बल्ब इन टर्न, इट इज मोर डिफिकल्ट फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू पास थ्रू टू बल्ब दैट देन वन। अब सो देयर इज लेस एनर्जी एंड बल्ब ब्राइटनेस विल डिक्रीज। जब हमने पहले भी पढ़ा था तो मैंने बताया था कि करंट जो है इसमें सीरीज सर्किट में करंट हमारे पास जो है वो क्या होता है, सेम होता है, बट वोल्टेज इज नॉट सेम। हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट लेस एनर्जी, बाय एनर्जी वी मीन वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज इज नॉट सेम, ठीक है। इस ये जो सेकंड पॉइंट है इसका ये मतलब है कि वोल्टेज इज नॉट सेम, ठीक है, अक्रॉस द सर्किट इन सीरीज सर्किट, अक्रॉस एनी पॉइंट इन द सीरीज सर्किट। सो करंट जैसे ही पास करेगा एक बल्ब से, ठीक है, दूसरे बल्ब पे, तो इट इज डिफिकल्ट फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू पास थ्रू टू बल्ब देन वन, ठीक है। एक ही रास्ते में उसने दो बल्ब से पास करना है, तो वो अपनी एनर्जी कुछ ना कुछ यहाँ से पास करते हुए लूज कर देगा, फिर दूसरे बल्ब के पास जाएगा। इट मीन्स के बाद में जो बल्ब होगा वो थोड़ा सा उसकी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसको एनर्जी थोड़ी सी कम मिलेगी। एनर्जी कम मिलने का मतलब है कि वोल्टेज जो है वो सेम नहीं है, ठीक है। हर एक बल्ब के पास सेम वोल्टेज नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, करंट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इन दिस सर्किट। करंट हर सर्किट में हर एक पॉइंट पे सेम होगा। आपने देखा यहाँ पे जो बैटरी से करंट निकल रहा था दैट इज आई, जो बल्ब जो वन था उससे आगे गया दैट इज आई वन, जो दूसरे बल्ब से आगे करंट गया दैट इज आई टू। सो इट मीन्स दैट current at all points in this circuit are same whether it's I1 or I2. All the current is same across the circuit, across the different points in the series circuit. And here is the voltage V1, V2, and it's not same. You can write that V1 is not equal to V2, and so that the bulb, each bulb will glow less brightly and the brightness will decrease. Example of this is fairy lights. In fairy lights, we have only one switch and one path for the current to flow. In series circuit, and if one bulb goes out, others do the same. ठीक है, एक हमारे पास सीरीज जो फेरी लाइट्स है उसमें खराब हो जाए तो हमारा पूरा का पूरा जो होती हैं वो लाइट्स खराब हो जाती हैं और अक्सर इसी वजह से वेस्ट हो जाती हैं। लेकिन इसके लिए यही सर्किट जो है वो सूटेबल है, क्योंकि हम हर किसी के लिए अलग पाथ, और हर लाइट इतनी ज्यादा होती हैं कि उनके लिए अलग अलग स्विच या अलग अलग करंट का पाथ नहीं हो सकता। If one bulb is removed, there is a break anywhere in the circuit, all bulb goes out. इसी तरह फेरी लाइट का जिस तरह केस था कि अगर एक भी लाइट खराब होगी या एक भी बल्ब रिमूव हो गया तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, वो सर्किट इनकम्प्लीट सर्किट बन जाएगा। अगर मैं यहाँ से ये बल्ब रिमूव कर दूं, ठीक है, तो ये रास्ते में तो गैप आ गया, गैप आ गया तो आगे इस तक तो करंट जाएगा ही नहीं दूसरे बल्ब तक। इट मीन्स के बाकी भी जो बल्ब होंगे सीरीज में वो गोज आउट हो जाएंगे, इट स्टॉप वर्किंग, ठीक है। गोज आउट का मतलब है इट विल नॉट ग्लो। अब आदका का क्वेश्चन है, आदका आप अपना क्वेश्चन पूछ लो। टीचर वो मुझे वोल्टेज की समझ नहीं लगी।
ओके। वोल्टेज मैंने आपको पहले भी जब बताया था तो मैंने बताया था कि वोल्टेज बेसिकली हम एनर्जी को कह रहे हैं, ठीक है। आपके लेवल तक आपने यही समझना है कि वोल्टेज इज एनर्जी, ठीक है। तो हर एक के पास जो वोल्टेज है ना वो डिफरेंट होगा सीरीज सर्किट में, ठीक है। सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है बट वोल्टेज इज डिफरेंट, ठीक है। और इस वजह से हमारे पास यहाँ पे V1 V2 लिखा है। तो हर बल्ब के पास एनर्जी जो है, देखो अगर आप भाग रही हो, ठीक है, एक ही रास्ते में, इसी तरह बल्ब या ये इलेक्ट्रिसिटी समझ लो यहाँ से फ्लो हो रही है, ठीक है। एक रास्ते में गई है फिर दूसरे में आगे उसने सब बल्ब तक पहुंचना है। आप जितनी एनर्जी से फर्स्ट पर्सन को पानी सर्व करने जाओगे उतनी एनर्जी से दूसरे को सर्व नहीं करने जाओगे पानी, आपकी थोड़ी सी एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इस यही केस है कि यहाँ से एक ही रास्ते से उसने जाना है, ठीक है। तो एक ही पर्सन ने सबको सर्व करना है तो वो थक भी तो जाएगा ना, ठीक है। अगर यही बैटरी के साथ दो तीन रास्ते होते मीन्स के दो तीन लोगों को अगर मैं लगा देती कि पानी सर्व करना है तो एक इधर से चल जाता है एक इधर से चल जाता है और सबको सर्व करा था एक एक बंदे को, तो उसके पास एनर्जी सेम होनी थी। अब यहाँ पे एक ही ने जाना है, हर किसी के पास एक ही पाथवे से जाना है, यहाँ पे वो ज्यादा एनर्जी होगी यहाँ पे कम एनर्जी होगी, ठीक है। तो इसको हम वोल्टेज का नेम दे रहे हैं, ठीक है, कि वोल्टेज जो है पहले बल्ब के हर बल्ब के साथ जो है ब्राइटनेस डिक्रीज करती जाएगी क्योंकि एनर्जी डिक्रीज कर रही है, लेस एनर्जी हो जाएगी हर बल्ब के पास। लुबना आपका क्वेश्चन है, आप पूछ लो। टीचर मैंने पूछना था कि आपने वो कैरेक्टरिस्टिक सुनी है। हाँ जी, अभी मैंने इसका क्विज लेना है, मैंने स्टार्ट में बताया। अब हम आ जाते हैं पैरेलल सर्किट्स पे। पैरेलल सर्किट, सीरीज सर्किट मैंने बहुत आपको डिटेल से बता दिया और पैरेलल सर्किट भी आई होप कि आपको फौरन से समझ आ जाएगा। पैरेलल सर्किट इज जस्ट लाइक ऑपोजिट टू ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज सर्किट, ठीक है। टू एंड मोर बल्ब्स आर कनेक्टेड सेपरेटली टू ईच टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब है एक एक रास्ता, ठीक है। हर एक यहाँ पे दिस इज द मेन टर्मिनल, दिस इज द मेन टर्मिनल। मेन ये रास्ता था ना जो यहाँ से मेन सर्किट से जा रहा है, अब इससे आगे दो बल्ब अगर निकल जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये सेपरेटली सेम टर्मिनल से सेपरेटली कनेक्टेड है, ऊपर वाला नीचे वाला, ठीक है, सेपरेट हो गए हैं इसके आगे से दो रास्ते, ठीक है। जस्ट लाइक आप लोग वो पजल गेम खेलते हो, ठीक है, या मेज जो होती है, ठीक है। तो काफी ज्यादा बीच में रास्ते निकल आते हैं, एक ही मेन से दो रास्ते निकल आए हैं या तीन निकल आए हैं अगर तीन बल्ब अटैच करने हैं, जिसकी वजह से बल्ब जो हैं आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब इसके पास देर इज टू वे फॉर द करंट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो, ठीक है, यहां से भी जाएगा, ठीक है, और यहाँ से ऊपर से भी जा सकता है, ठीक है। तो इसी तरह ये यहाँ से भी जाके यहाँ से होके यहाँ पे आ सकता है, फिर दूसरा रास्ता यहाँ से जाके यहाँ पे, ठीक है, इस तरह आ सकता है। तो ऑल बल्ब्स ग्लो ब्राइटली, सब बल्ब जो है ब्राइट ग्लो करेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें वोल्टेज सेम होगा, फ्रॉम सेल और बैटरी से एक ही वोल्टेज जा रहा है, सेम वोल्टेज। करंट सेम होगा? नो, करंट इज नॉट सेम, ठीक है। करंट इन ईच ब्रांच विल डिपेंड ऑन द कंपोनेंट्स इन दैट ब्रांच, कि वो ब्रांच जो वो बल्ब कितनी करंट लेता है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा, करंट सेम नहीं होगा क्योंकि एक ही वो पाथवे से नहीं फ्लो कर रहा, एक ही वे नहीं है उसका, ठीक है। टुगेदर टू बल्ब्स टेक मोर करंट, दो बल्ब जो है इसमें ज्यादा करंट लेंगे क्योंकि हर एक अपनी फुल एनर्जी ले रहा है, ठीक है। सो सेल और बैटरी जो है वो ज्यादा देर नहीं चलेगी, जल्दी खत्म हो जाएगी हमारा सेल। हर बल्ब जो है, अगर हम वन बल्ब रिमूव कर देंगे देर स्टिल अ कंप्लीट पाथ, अगर मैं ये रिमूव भी कर दूं इट डजेंट मैटर, ये यहाँ से ट्रैवल करके आ जाएगा, ये बल्ब तो फिर भी ग्लो करेगा, ठीक है। सो द सेल और बैटरी, सो हमारे पास क्या होगा, देर इज अ कंप्लीट सर्किट थ्रू द अदर बल्ब सो इट कीप्स ग्लोइंग ब्राइटली। करंट का पॉइंट मैंने बता दिया कि हमारे पास सेम नहीं रहेगा, ठीक है, हर एक पॉइंट पे। यू कैन इवन हैव अ सेपरेट स्विच। अब मैं यहाँ पर अगर स्विच लगा दूं, ठीक है, यहाँ पे मैं एक स्विच लगा दूं और एक स्विच यहाँ पे लगा दूं, तो इनका मैं सेपरेट सेपरेट स्विच भी लगा सकती हूँ। यहाँ से ऑन करूंगी तो ये ऑन हो जाएगा, यहाँ पे स्विच ऑन करूंगी तो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेन एक स्विच और अलग अलग भी इनका स्विच लगा सकती हूँ, ठीक है। अगर मेन स्विच ऑन किया ये वाला मैंने ऑफ कर दिया तो ये बल्ब नहीं ग्लो करेगा, ठीक है। द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन आवर होम्स, हमारे घरों में भी पैरेलल सर्किट होते हैं, हर एक अप्लायंस जो है एक ही बटन से नहीं चल जाते बल्कि हर एक के लिए डिफरेंट होते हैं। हमारे पास जो है एसी का डिफरेंट बटन होता है, हमारे पास हमने एक केटल चलानी है उसका डिफरेंट बटन होता है, फैन का डिफरेंट होता है, बल्ब का डिफरेंट होता है। सो इट्स ऑल ऑफ अ काइंड ऑफ अ पैरेलल सर्किट वी हैव इन आवर होम। ओके, लुबना आपका कोई क्वेश्चन है? इसके बाद मैं आपसे क्विज शेयर कर रही हूँ, सब बच्चे ये क्विज करना शुरू कर दें। मैश टीचर मैं द क्लोज, सब बच्चे ये क्विज करें, हरी अप।
टीचर मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर वो जो होगा एक सर्किट जो होगा उसका करंट सेम होगा किस सर्किट में, सीरीज की या पैरेलल की? पैरेलल में। पैरेलल में मैंने आपको बताया करंट नहीं सेम होगा। आपने लर्न नहीं किया? आर्मी मैंने लर्न करने के लिए भी दिया था, ये आपको दोबारा रिवाइज करवाया। ये जल्दी से अब करना शुरू करें, सीरीज और पैरेलल। ड्रॉ लाइन फ्रॉम द क्लू टू द करेक्ट सर्किट टाइप। माहिदा सतवत यहाँ पे ना मार्क करें, अपनी नोटबुक पे लिखें। सब बच्चे अपनी नोटबुक पे लिखें, जल्दी से लिखना शुरू कर दें। ये क्लू है, ये सीरीज पैरेलल सर्किट है। इफ वन बल्ब गोज आउट ऑल गो आउट। आपने टिक करना है यहाँ पे या यहाँ पे, कौन सा ये होगा, ठीक है। एक कॉलम बना लें इस तरह। अगर ये वाला सीरीज है तो सीरीज में टिक करें। यहाँ पे माहिदा सतवत लाइंस ना लगाएं प्लीज। और अगर पैरेलल है तो पैरेलल में टिक करें, ठीक है। फिर बल्ब ग्लो ब्राइटली बिकॉज ईच गेट्स फुल वोल्टेज। सीरीज है या पैरेलल है, यहाँ पे टिक करें, ठीक है। करंट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स, किन में सेम होता है, ठीक है। जोन से वाले में सेम होगा, उसके बॉक्स में क्लिक कर देना। यूज इन होम वायरिंग, कौन सा होम वायरिंग में यूज होता है। करंट इज नॉट सेम इन ऑल पार्ट्स, कौन सा इसमें से। फेरी लाइट्स किसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। जल्दी से कर लें। ओके, अब मीन वाइल मैं जो है आपकी अटेंडेंस भी ले लेती हूँ और आप लोगों से पूछ भी लेती हूँ। आज बच्चे भी काफ़ी एब्सेंट लग रहे हैं मुझे। मैं आपसे पूछ भी लेती हूँ कि कुछ बच्चों से कि हमने क्या पढ़ा है, इस तरह से हमें पता लग जाएगा। ओके, आप अपना हैंड रेस करें जिसको पता है। इफ वन बल्ब गोज आउट ऑल गो आउट, किसको पता है ये? हैंड रेस करें। महक आप बता दो। सीरीज सर्किट। एक बल्ब गोज आउट ऑल, ठीक है, वेरी गुड महक। अब आप म्यूट हो जाएं। फिर फरीदा, आप नेक्स्ट बताएं। बल्ब ग्लो ब्राइटली बिकॉज ईच गेट फुल वोल्टेज, कौन सा है ये? पैरेलल। ठीक है, गुड। नेक्स्ट मिनाल बता दें। करंट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। मिनाल आप बता दें। पैरेलल सर्किट। करंट इज सेम। दोबारा से सोच लें। ओके, और कौन ये बताएगा? माहिदा साजिद। माहिदा साजिद आप बता दो। करंट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। टीचर सीरीज सर्किट। गुड। लुबना आप बताओ। यूज्ड इन होम वायरिंग। पैरेलल सर्किट। गुड। जिन जिन को पता है वो हैंड रेज रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, करंट इज नॉट सेम एट ऑल पॉइंट्स, आप बताओ हुरिया। हुरिया, करंट इज नॉट सेम इन ऑल पार्ट्स। पैरेलल सर्किट। वेरी गुड। हसना, फेरी लाइट्स यूज दिस टाइप। सीरीज सर्किट। वेरी गुड। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। इसका मैं आंसर भी आपको शो कर देती हूँ, ये देख लें। सब बच्चे मैच कर लें, उन्होंने सही आंसर लगाया है। जल्दी से मैच कर लें। हो गया मैच सबका? मैंने बोल भी दिया, सब यहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आ जाएं। Read the situation and draw a simple circuit using symbol battery, bulb, switch, wire. Draw a series circuit with one battery, two bulb, one switch that turns both bulb off at the same time. ठीक है, आपने सीरीज सर्किट ड्रॉ करना है जिसमें एक बैटरी, दो बल्ब लगाने हैं और एक स्विच लगाना है, ठीक है। और ऑफ एक ही टाइम पर होना चाहिए वो, ठीक है। मीन्स के एक ही स्विच लगाना है। फिर आपने एक पैरेलल सर्किट ड्रॉ करना है जिसमें एक बैटरी, दो बल्ब
और 2 स्विच लगाने हैं, हर एक के लिए अपना अपना स्विच, ठीक है। किसने इस तरह से ड्रॉ करने का सोचा है? ठीक है, ये देखें, एक स्विच लगा दिया मैंने, ये बैटरी लगा दी और बल्ब। बैटरी के जो सिंबल आपको बताए गए हैं ना, वही आप यहाँ पे ड्रॉ करिएगा। मैंने ये बस जस्ट यहाँ पे करना था, तो मेरे से इस तरह का ही ड्रॉ हुआ है, ठीक है। फिर मैं आप लोगों का चेक कर लूंगी। नेक्स्ट पैरेलल में ये देखें, 2 बल्ब हैं अलग अलग, मैंने इसका बात लगाया एक ही टर्मिनल से, फिर इनके मैंने ये 2 स्विच लगा दिए हैं, ठीक है। स्विच आपको पता है किस तरह का होता है, ठीक है। इस तरह से नहीं ड्रॉ करना है, जिस तरह आपको सिंपल कल वाली क्लास में मैंने सिखाए थे, वैसे ही आपने करना है। ये दोनों चीजें समझ आ गई हैं सबको? ये वाले क्वेश्चन आप सोल्व करें। Ria made a circuit with 2 bulb and a battery. Both bulbs were glowing, but when she removed one bulb, the other went off. बताएं किसको ये पता है, जल्दी से हैंड रेस करें। मानिया आप बता दो। एक रिमूव किया, अदर वेंट ऑफ, कौन सा होगा? मलीहा, फरहान, पैरेलल। अतीका, लाइन ना लगा। मलीहा बताएं। टीचर सीरीज सर्किट। सीरीज है, एक बल्ब रिमूव किया, दूसरा भी रिमूव हो गया। इसको एक्सप्लेन भी करना है, क्योंकि हर एक का अपना जो है पास है। फिर इफ यू एड अ थर्ड बल्ब टू पैरेलल, व्हाट हैपन टू द ब्राइटनेस, इसको कौन बताएगा? हैंड रेस करना है। महक आप बता दो। वो it will its brightness will remain same. वेरी गुड, ठीक है। अब ये आंसर भी मैं आपको इसके शो कर रही हूँ। ये सब बच्चों ने जो है अपने टीचर खुद करना है, ठीक है, खुद आप लोगों ने करने हैं। टीचर ये आप हमें सेंड कर देंगी? हाँ जी, ऑफ कोर्स, मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड करूंगी, इसीलिए मैंने रिकॉर्डिंग में आपको शो भी कर दी है, ठीक है। बस ये मैंने आपको दिखा दी है, रिकॉर्डिंग में आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोगों ने ये खुद करने हैं क्वेश्चन। ठीक है। चलिए, मैं अब आपके अटेंडेंस ले लेती हूँ।